Now 11:50, so I can start. See, today we are doing trigonometry 1. First chapter was very small, angle and its measurement. Zada, all the sums were radian, converting into degree and radian measure and all that. And the clock hand, which we did. Now trigonometry 1 has all the new concept. Although you have done in IIT, you can do by that method. But what is in their textbook and how to write, obviously you are studying in this college. So college, what are the expectation and how to write and all that you will learn here. And again it will be a revision agar long back kiya hoga trigonometry. It's a base, you know, trigonometry 1 and trigonometry 2, nothing is omitted. Agar wo list I will have send you, again I'll send जो गवर्नमेंट ने भेजी है लिस्ट ऑफ डिलीटी एग्जांपल्स, उसमें सिर्फ पेज 24 and 25 of the textbook is omitted, which has only graphs. So graphs you are not supposed to plot and all that. Okay, so make sure students. Is this clear? What I'm talking about? So let's start. In school, you were just limited के standard angle 30 degree, 45, 60 sin का, फिर ओसा छोटा वो याद रखते थे, sin theta opposite upon hypot, और वो standard angles की है. But now you can find here, now in higher class, with the help of circle, you can find trigonometric ratios of any angle. You know, any angle given, it will be repeated. Huh. Okay. And your Varun contractor is there. Again, I'm asking, उसका Gmail ID अब तक नहीं आया. And students still, I have sent invitation. पर जिसने जिसका अभी तक Google Classroom में जो join नहीं हुआ है, एक बार मुझे WhatsApp में भेजो. मिस still मुझे link नहीं, मैं join नहीं हुई या join नहीं हुआ है. Google Classroom Gmail खोल के भी तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है, क्योंकि notifications बंद होते हैं तो वो दिखता नहीं है invitation. So what I want, क्या जिस जो still join नाम दिया है एडवांस 3 बैच. सो इफ यू ऑल हैव नॉट बीन जॉइन देयर, व्हाट्सएप मी कि मैम आई हैव स्टिल नॉट जॉइन. तो व्हाट आई विल डू, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगी और वो लिंक पे क्लिक करते ही तुम लोग ऐड हो जाओगे. ओके, सो विदाउट फेल आफ्टर द क्लास सेंड मी द लिंक, and today itself I'll send, or by tomorrow you will be joined. I'll send you the link, क्योंकि we have admission work also after the lectures, so I don't know I will be able to send immediately. But still wait, but at least send me those who have still not joined in advanced 3 Google Classroom batch. अब Google Classroom में lectures या ये नहीं होने वाले हैं, तो कोड वोड किसी की भी जरूरत नहीं है. बस जो भी असाइनमेंट्स रहेंगे और मटेरियल है वहां पे पोस्ट करते हैं, और दैट ऑल इज देयर एंड यू हैव टू सी इट. Yes, round 2 has come. So today that admission work and all that is there, and then we'll inform जिसका जिसका नहीं हुआ है. Right now let's focus on this. पर please Google Classroom में जो जो ऐड नहीं हुआ है मुझे आज मैसेज कर देगा. जो ऐड हुआ है उनको नहीं मैसेज करना है कुछ. Only those who have still not been added, they will text me. Okay. So trigonometric ratios, if you want to find of any angle, so what you have to do, take a circle of radius r, take any point on the circle. So you know this is x and y coordinate. Now if I drop a perpendicular m, so this will be a right angle triangle, and since this is xy, that means this length will be x. तुम plot करते हो 2,3, तो ये जो होता है ये x coordinate होता है, ये y coordinate होता है ना. 2,3 अगर plot करते हो, so we say that ये 2 और ये length है 3, so 2,3. So this is y coordinate, this is x coordinate. Now with the help of this figure, you know that sin theta is opposite upon hypot in a right angle triangle. So opposite value is y and hypotenuse is r. So I can write it as y upon r. And of course, you can see that r is equal to square root of x square plus y square, क्योंकि Pythagoras theorem. So we have r value. So this is y upon r. Hence we can say that y is equal to r sin theta. Same way cos theta is adjacent upon hypotenuse. Here it will be OM upon this, so it is r x upon r. So x will be r cos theta. So in short, I want each and every student to know that x coordinate is always cos theta. R कुछ भी हो सकता है, as if उसकी values जब ratios आएगी, it is independent of the r. When you will find the value, and y is always r sin theta. This is called polar coordinates also. In other words, this is known as polar coordinates. तो ये coordinate या Cartesian system बोलते हैं. These are known as polar coordinates of this trigonometric functions. So now x is always r cos theta, y is always r sin theta. So r square we know that x square plus y square.
So if you substitute x value and y value, r square cut हो जाएगा. Hence we get this result again, which you have done in school. Sin square theta plus cos square theta is 1. So this result तुमने right angle triangle से वो अलग सा proof था. तो यहाँ से भी तुम्हें वो proof दिख जाता है. क्या cos square theta plus sin square theta, this identity very important, is always 1. Now since the square of any two positive number is equal to 1, so definitely this will claim that cos square theta is less or equal to 1 and sin square theta is less or equal to 1. है ना? 2 plus 3 अगर 5 है तो 2 definitely will be less than 5 and 3 less than 5. वही किया है हमने. And since square of any number is less or equal to 1, मतलब उसकी value will be between -1 and 1. तो ही उसका square करोगे तो वो 1 से कम होगा, वरना नहीं होगा. Hence, whenever something is less or equal to 1, that means it lies between -1 and 1, अगर square है तो. So if sin square theta is less or equal to 1, that means again you get range. Domain और range हम further next class में करेंगे. Each trigonometric functions का domain और range करेंगे. But as I am saying, I am strictly following textbook. क्या तुम जब textbook read करो तुम्हें पता होना चाहिए this all is there in the textbook. So I am mentioning here that cos theta will always lie between -1 and 1 and sin theta also will lie between -1 and 1. उसकी values trigonometric. तो वो range में हमें बाद में काम आने ही वाला है. I hope this is clear. Now let's move on to sign convention. Students, अगर most of the student को लगता है मिस ये आता है आप further थोड़ा fast जाओ या आगे जाओ तो I'll do that. I don't know since we have not interact, वो क्लास की अलग बात है. क्लास में पढ़ाने का मजा ही अलग है. You can say अच्छे से मिस ये हो गया ये पार्ट बता दो. फिर अभी by faces we can say अरे ये स्टूडेंट को शायद नहीं समझा. I'll go slow only. It's not that सारे स्टूडेंट्स को आता है या ऐसे. Next is about the sign convention. Now since you know that x is cos theta, अगर मैं radius 1 ले रही हूँ तो x is cos theta and y is sin theta. Okay. So this you know that in this quadrant it is plus plus, x यहाँ पे negative है और y positive है. यहाँ पे दोनों negative होते हैं. यहाँ पे x positive है and y is negative. Now since here it is, this is a trick to remember the sign convention. All silver tea cups और add sugar to coffee. But book में ये है तो सालों से यही हम यूज करते हैं. All silver tea cups. Sorry, tea cups. What do you mean by this? I'll tell you how to remember for sign convention. Now here x coordinate and y coordinate both are positive. That means cos theta and sin theta are positive. Remaining all the trigonometric ratio. Yes, ASTC rule. कोई कोई ऐसे भी तुम्हें ऐसे सिखाया तो ASTC rule याद रख सकते हो. और जिसको वो ASTC नहीं आता है तो ऐसे याद रखते हो. All silver teacups. So whichever way you want to remember, it helps you to remember which quadrant the trigonometric functions has which sign. So if x and y are both, cos and sin are both are positive, tan, cot, sec, cosec, सब इससे related है, वो सारे positive है first quadrant में. This is our first quadrant. Now in second quadrant, x is negative. That means cos theta is negative. अगर cos negative है तो sec theta negative हुआ. Sec negative, cos negative है तो sin upon cos मतलब tan negative हुआ. Tan negative है तो cot negative हुआ. तो you can see सिर्फ y coordinate positive होता है second quadrant में. तो y coordinate मतलब sin और cosec. तो except sin and cosec, remaining all will be negative. So this symbol stands for which is positive in that particular quadrant. T stands for tan theta. Again, both are negative. So sin upon cos, tan will be positive because both are negative. वो cut होके positive हो जाएगा. If tan is positive, cot is positive here. Remaining all other trigonometric functions will be negative here. This C stands for cos, not cosec. Cos theta, because cos, sin and tan will always be the main. Yes, all students to college. जो जैसे याद रखना है, बहुत सारे होते हैं. Add sugar to coffee, बहुत सारे हैं. ASTC, जिसको जैसे याद रखना है. C stands for cos. So cos is positive. So that means sec भी positive होगा. But बाकी सारे negative हो गए. तो I repeat, in first quadrant all values are positive. In second quadrant sin and cosec will be positive, remaining negative. Here which is positive that we are telling. Here tan and cot will be positive, and see here cos and fourth quadrant cos and sec will be positive. Okay. Now mostly we will find the values of the angle negative only. What I was saying, anti-clockwise. कभी भी कोई भी angle है 300 degree, 500 degree, 575 degree, तुम्हें ऐसे भी questions है, find the sign convention. And as if उसकी value find करने के लिए भी आएंगे. So that all you have studied. तो again just a revision. But anti-clockwise मतलब anti-clockwise है तो ठीक है. But clockwise है मतलब negative angle. ये angle minus theta होता है.
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेगेटिव एंगल जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, अक्यूट नेगेटिव एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो cos of minus theta will remain cos theta only because it is positive. So even if the negative angle is given, cos has no impact. अगर cos को नहीं है तो that means sec of minus theta will be also sec theta. तो what I suggest, जब नेगेटिव एंगल्स आएंगे हम ये रिजल्ट्स यूज करके फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में. So that will help us to get the values. But sign of negative angle in fourth quadrant, sign is negative, hence we'll get minus sin theta. Same way for cosec. Same way for tan and cot. Tan of minus theta is also minus tan theta. You can remove minus outside, and cot of minus theta is also minus cot theta. So this result will help you if negative angles is asked. I hope this is clear. मैम थोड़ा फास्ट जाते हैं. ओके ओके, तो आई विल गो फास्ट, क्योंकि तो फिर सीधा एक्सरसाइज पे ही जाते हैं. पर मुझे और एक चीज बतानी है जो टेक्स्ट बुक में है. टेक्स्ट बुक में एक समझो 150 डिग्री है, ये था साइन के बारे में. टेक्स्ट बुक में 150 डिग्री, अब तुम्हें तो डायरेक्ट शॉर्टकट और अलाइड एंगल से ही किया होगा. साइन 150 डिग्री फाइंड करने को बोले तो व्हाट यू विल डू, साइन 180 माइनस 30, और फिर तुमने लर्न किया होगा कि साइन 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 है तो साइन विल रिमेन साइन, तो वो साइन 30 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा. ये सारे स्टेप्स है, ऐसे ही करने एग्जाम में भी. 90n मेथड, यस यस 90n मेथड में वही, वो अलाइड एंगल्स का 90, वो हमें सेकंड चैप्टर में बस 90n मेथड ही करना है. यस, वही वाला मेथड करके तुम्हें करना है. 90 का मल्टीपल है, मैं भी वैसे ही करती हूँ. अगर 150 है तो 90 से डिवाइड करके कौन सा मल्टीपल है, अगर वो इवन है तो साइन विल रिमेन साइन, और वो ऑड है तो साइन कन्वर्ट्स टू कॉस. वही मेथड मैं बताने वाली थी. सिंस यू ऑल नो आई विल नॉट शो दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज एग्जाम में तुम्हें हम पूछेंगे ना 150 डिग्री, तो समझो 1 मार्क का पूछा तो तुम्हें इतने स्टेप्स बता के ये बताना है, ठीक है. बट एग्जाम ऐसे भी क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में 150 डिग्री, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 150 डिग्री. ऑल ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस ऑल द 6 यू हैव टू फाइंड, टैन सारे फाइंड करने. तो ये 2 मार्क का पूछा है तो तुम्हें वो स्टेप्स नहीं दिखाने, तो तुम्हें डायरेक्टली लिखना है. जैसे अभी हमें आंसर क्या आया, हाफ आया ना. सो ये √3/2 पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा माइनस, फिर सारे मिल जाते हैं. ऐसे करके 6 करने, डायरेक्ट वैल्यू लिखना है. व्हाई, बिकॉज इट इज 2 मार्क्स और 6 वैल्यूज पूछी है. तो ऑलवेज लुक एट द मार्क्स. हाँ मैं अच्छा ठीक है, तुम्हें 90n मेथड अलग पढ़ाया होगा, तुम वो यूज कर सकते हो. ऐसे मैं बोली जो भी स्टेप दिखाना है, मैं अपना भी मेथड सिखाऊंगी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर 2 मार्क्स के लिए सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे तो बस एक एक करके ऐसे लिख देना है डायरेक्ट आंसर. अगर 2 मार्क के लिए एक ही पूछी है या 2 ही वैल्यू पूछी है तो एक आध लाइन वो कैसे तुम आंसर लाए वो बताना है. बट इन दिस चैप्टर इन टेक्स्ट बुक जो मेथड दिया है वो मैं बताती हूँ, पर ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम उसको 3 मार्क के लिए नहीं पूछते. इन पेस फ्रॉम लास्ट 6 years आई एम टीचिंग, वी नेवर आस्क यू कि ये सर्कल से तुम वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को वैल्यू फाइंड करने आनी चाहिए. पर टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल इफ यू रेफर, वो वाला मैं मेथड बता रही हूँ क्या टेक्स्ट बुक मेथड क्या है. पर एग्जाम में वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू गेट साइन 150 डिग्री बाय दिस मेथड. it's in the textbook. तो I just want to give you a short explanation. अब 150 डिग्री मतलब यहाँ पे 150 डिग्री होगा. तो तुम हाँ यूनिट सर्कल वाला तो तुम लोग ने किया है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर हम ये मेथड एक्सपेक्ट भी नहीं करते. हाँ ये यूनिट सर्कल वाला मेथड है, करेक्ट. सो दिस इज अ यूनिट सर्कल एंड अ लेंथी मेथड यू कैन से. बट अभी टेक्स्ट बुक में सम्स में इतनी सारी एक साथ वैल्यूज पूछी है तो हर एक सम को बच्चा ये मेथड से करे. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. इट्स जस्ट इन द टेक्स्ट बुक, क्योंकि पेस के स्टूडेंट्स जो मतलब आईआईटी और इस पे प्रिपेयर करते हैं हम, और हमारा ही पेपर रहता है. अगर बोर्ड होता है तो ठीक है 11th, पर 11th में हमारा ही पेपर होता है. तो टिल डेट वी नेवर आस्क यू कि ये मेथड से करो, क्योंकि ये सम है 3 मार्क का, पर हम तुम्हें ये 1 मार्क का या एमसीक्यू में ही पूछते. आई एम जस्ट शोइंग यू जस्ट वंस, क्या ये 90 डिग्री है, ये 150 है तो ये 30 होगा. तो तुम्हारे जितने वैल्यूज फाइंड करने हैं ना, आइदर इट विल बी 30 60 90 ट्राइंगल और 45 45 90 ट्राइंगल, ऐसे ही आएगा. तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल यू कैन फाइंड. अब देखो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ द हाइपोटेन्यूज. अगर रेडियस आर भी लेते हो तो भी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, पहले मैं हाफ दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 1 है और साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हमारा y है.
पर y क्या है 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री हाफ हुआ, cos 150 डिग्री तुम्हारा √3/2 द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हम 1 ले रहे हैं और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव आ जाएगा। बट अगर समझो रेडियस r भी ले रहे हो तो फिर ये क्या होगा r sin 150 into r, तो r कट हो जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, तो दैट डजंट मैटर यूनिट सर्कल लो या रेडियस r वाला लो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज अ लेंथी मेथड, ये 90 60 30 ट्राइंगल बनाओ और ये सब, ये मेथड नहीं पूछेगे, बट एवरीवन शुड नो दैट एक्चुअली बाय दिस मेथड, दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मेथड जिससे फ्यू वैल्यूज फाइंड की है। उसके बाद अलाइड एंगल्स जो हम पढ़ते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री 2 में, जो टेक्स्ट बुक में प्रोसेस है ना वो एकदम ऑर्डर में है, तो वो मेथड उधर है। पर ऑल्दो आई वांट यहाँ पे हो या वहां पे हो, पेपर में तो एक ही सम आएगी, नोबडी इज गोइंग टू मेंशन दैट यूनिट सर्कल से तुम हमें साइन 150 डिग्री ढूंढ के बताओ। सो एज यू नो 150 डिग्री फाइंडिंग तुम लोग वही याद रखोगे। It's just this that this is also one of the, but it is a lengthy method, so we don't expect कि student ये method पूरा steps के साथ learn करे या लिखे। Now let's go straight away to exercises, क्योंकि we generally do exercises sums, बच्चों को आता ही रहता है इसलिए, और हमारे पास lectures कम मिलते हैं तो हम भी ऐसे revision की तरह ही इनको थोड़ा फास्ट सिखाते हैं। तुम लोग को आता था तो मैं थोड़ा फास्ट गई। एक्सरसाइज 2.1 है ना, चलो ये हम सब करके बताओगे तो मैं फिर फटाफट आगे बढ़ूंगी। फाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सारे वैल्यूज दिए, आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक है, पेज 21 पे है एक्सरसाइज 2.1। आई एम गोइंग, बुक में मेंशन है, तो तुम्हें ऐसा व्हेन यू आर रीडिंग टेक्स्ट बुक यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि अरे ये क्या पूछा है, तो I am clearing, you don't have to study that method, it's just you can go through once, so I gave you the explanation। 30 60 90 ट्राइंगल है, रीड करोगे सॉल्व एग्जाम्पल समझ जाओगे, पर वो मेथड एग्जाम में नहीं करना है, हम डायरेक्ट ही पूछते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू डायरेक्टली डू इट। मुझे अभी साइन 300 डिग्री सब फाइंड करके बताओ। अब साइन 300 डिग्री आई डोंट नो तुम लोग कैसे फाइंड करते हो, तुम लोग अपने मेथड से फाइंड करो, मैं अपना बताती हूँ। आई ऑलवेज डिवाइड बाई 90, वही 90 एन, अब ये 3 सा 270, तो ये 30 डिग्री हुआ, सो साइन 90 है तो मैं उसको π/2 लिखती हूँ, 3 π/2 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 300 को हम कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। नाउ आई टेल माय स्टूडेंट्स, क्या अगर वो हाँ वो वैल्यूज तो मैं जैसे निकाली है, जस्ट ये मैं बता रही हूँ कि मैं हाउ आई फाइंड आउट इज इफ इट इज अ मल्टीपल, सॉरी इफ ये ऑड है, ये ऑड ऐसा है तो साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस, साइन कन्वेंशन देख के, और अगर ये इवन है तो ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन विल रिमेन साइन, तो ये एन इज ऑड और ये एन इज इवन। आई डू इट बाय दिस मेथड, और फिर अभी ये साइन 3π/2 प्लस है, तो ये क्योंकि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो इट विल गेट कन्वर्ट, नहीं √3/2, सॉरी √3/2 करेक्ट। तो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज माय मेथड ऑफ डूइंग इट, यू ऑल डू बाय दिस मेथड, या तुम लोग ने वो लर्न किया है सारा? हाँ 360 माइनस थीटा से भी कर सकते हैं तुम लोग को, है ना, ये वही जल्दी क्विकली हो ना, तो तुम लोग को लर्न करवाया रहता है, क्या वो साइन पाई माइनस थीटा क्या है, साइन 2π माइनस थीटा क्या है, वो सब यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट ऑल मेथड व्हाट यू हैव लर्न इन IIT यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट, ऑल योर मेथड्स आर अलाउड, इट्स जस्ट कोई कोई बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मैं उनको फिर वो लर्न करने से अच्छा है ऐसे बोल देती हूँ, ये एक साइन कन्वेंशन सिखा देती हूँ और हर वैल्यू 90 से डिवाइड करो तुम्हें, और ये दो याद रख के कर सकते हो। Since right now you know, we know that sin 300 क्या है, मुझे we got as minus √3/2, and क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है cos 300 क्या होगा, अगर ये √3/2 होगा तो वो तो हाफ ही होगा। Once you get sin and cos value, read the question. Question 1 is find all the trigonometric functions. If you find sin and cos और छोड़ दोगे you will lose marks. सारे trigonometric functions पूछे तो sin, cos, tan 300, फिर तो देख के ही पता चल रहा है, इसको देख के यूज करके करना, माइनस √300, हाँ दिस ऑल यू विल नॉट टेल मी राइट नाउ तो चलेगा, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड। मुझे तुम लोग चैट में ये दोनों वैल्यूज लिखोगे, इट्स इनफ, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारे अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कोई फ्रैक्शन अपॉन है। बोर्ड में ये यस यू कैन यूज एनी मेथड, एक्चुअली ये तो बेसिक है,
11 तो तुम्हारा बोर्ड नहीं है, 12th बोर्ड में ऐसे सम्स नहीं है, खाली डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें आनी चाहिए वैसे है, मतलब यू विल बी नीडेड क्या तुम्हें, हाँ साइन 300 पूछा है तो उसका वैल्यू आना चाहिए निकालने के लिए, फिर कोई भी मेथड करो इसका वैल्यू -√3/2 होता है, हर बच्चे को निकालने आना चाहिए, एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 300 एंड हाउ टू फाइंड आउट, no matter whichever method you use in exam. I'm just saying that अगर all trigonometric ratios पूछे हैं for 2 marks, then you don't show even the steps which I am showing like this. तो बिल्कुल 180 माइनस वाला स्टेप भी दिखाने की जरूरत नहीं है. बट इफ ओनली साइन इज आस्क और 1 या 2 मार्क के लिए पूछा है तो तुम लोग 360 माइनस क्या 60 ये वाला यूज कर रहे हो, या 180 माइनस नहीं ये तो 300 हुआ ना, 360 माइनस 60 ये वाला यूज कर रहे हो, या 270 प्लस 30 ये यूज कर रहे हो, मतलब क्या यूज कर रहे हो वो बता दो, ठीक है. ओनली व्हेन इफ इट इज फॉर मोर मार्क, 1 या 2 मार्क के लिए और एक ही पूछा है. अगेन आई रिपीट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे क्योंकि टेक्स्ट बुक में यू डोंट हैव टू शो इवन दिस स्टेप, आई वी वांट डायरेक्ट आंसर. एक और कर लो, साइन -315, मुझे कॉस और साइन -315 दो वैल्यू खाली बता दो चैट में. चलो देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. थ्री 315 की वैल्यू यस 1/√, साइन का या कॉस का बोल रहे हो, दोनों यस. 315 माइनस है 1/√2 प्लस माइनस कॉस. अगर नेगेटिव है, हाँ 315 कैसे आएगा, ऐसे आएगा. तो दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 180 हुआ, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों राइट है. वेरी गुड, करेक्ट. तो तुम लोग हाँ दोनों 1/√2. तो मैं यही बोल रही हूँ सबको खाली ये निकालने आना चाहिए, उससे ज्यादा तुम क्या मेथड कर रहे हो, जो मतलब तुमने रीड प्रैक्टिस इतनी की है वही मेथड स्ट्रिक्टली फॉलो करो. नो नीड टू रेफर द टेक्स्ट बुक मेथड. सेकंड सम इज स्टेट द साइन. टेक्स्ट बुक में तुम्हें सम्स इजी लगेंगे ये चैप्टर के. थर्ड ट्रिग्नोमेट्री 2 में थोड़े अच्छे अच्छे और सम्स है. कॉट 230 का मुझे साइन बताओ, सिर्फ साइन पूछा है. अगर तुम वैल्यू लिखोगे एग्जाम में तो मैं रॉन्ग दे दूंगी वैल्यू, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है स्टूडेंट इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन एग्जैक्टली, मतलब यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. आई हैव आस्क्ड यू ओनली साइन. अगर साइन पूछते हैं तो मुझे सिर्फ साइन चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव एज अ सोल्यूशन लिखेगा चाहे तो तुम. तो कॉट 230 उसकी साइन क्या होगी, यस वेरी गुड, कॉट का क्या होगा, पॉजिटिव. और सेक 468 डिग्री ये तुम सिर्फ लिखोगे पॉजिटिव, डोंट फाइंड द वैल्यू इफ नॉट आस्क. 468 का बताओ, चलो इसका सबने बता दिया. नाउ सेक 468 यस करेक्ट. सेक 468 नेगेटिव, तो तुम्हें सिर्फ नेगेटिव लिखना है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी है. रीड द क्वेश्चन. आई वांट कि अभी से तुम लोग समझो क्या बोर्ड जो पूछता है वही उतना ही लिखना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. यू आर लर्निंग दैट ईयर. चलो थर्ड इज अ नाइस सम अगेन. स्टेट साइंस ऑफ 4 डिग्री एंड 4 रेडियन. ओके, which of the function is greater, which function is, find the value, find the sign of cos 4 radian and cos 4 degree, which function is greater. चलो try to solve it, then I will yes correct Shreyas, you are right. Let others also answer. Which function is greater, you can tell me that. और फिर कैसे स्टेप सीखने वो मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि अगर ये 2 मार्क का है तो तुम सिर्फ वो नहीं बताओगे. करेक्ट, सकेत हैज ऑल्सो गिवन द रीजन. हाँ तो वो करना पड़ेगा. वेरी गुड, ठीक है. यस द स्टेप्स आर 4 रेडियन है तो तुम्हें पता है 4 इंटू
रेडियन को हम लोग को 180 बाई पाई तो डिग्री होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट, हमने देखा था 57.32 ना, से मल्टीप्लाई करना, तो वो अप्रोक्सीमेट तुम्हारा 229 डिग्री 229। आई एम जस्ट शोइंग क्या ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो कैसे करना रहता है, इतना ये सब स्टेप स्किप कर सकते हो। तुम लिख सकते हो 4 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट 229, सो 229 तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता है, थर्ड, तो यू कैन से दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, cos 4 दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, so cos 4 degree 4 radian is negative and ये cos 4 degree first quadrant में है तो it is positive, therefore which is greater, we know that the degree one is greater, cos 4 degree is greater than cos 4 radian. So if in exam this sum is asked for 2 marks, so see the minimum step, इसका 1 मार्क ऑब्वियसली सबको मिलेगा क्योंकि हर बच्चा ये तो लिखने ही वाला है, मुझे पता है कौन सा ग्रेटर है, पर ये सब नहीं लिखेगा तो यू विल लूज 1 मार्क। आई रिपीट स्टूडेंट, सिर्फ ये लिखोगे यू विल गेट 1 मार्क। सपोज आई एम आस्किंग दिस सम फॉर 2 मार्क्स, देन आई एक्सपेक्ट 1 or 2 लाइन स्टेप। इज दैट क्लियर? दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, दैट ओनली, क्या अगर तुम लोग एग्जाम में स्टेप नहीं लिखते तो तुम्हारा मार्क्स, क्योंकि हर साल ऐसा होता है जो लेक्चर नहीं बैठते उनके साथ ज्यादा होता है, वही बोर्ड उन लोग तो पहले की बात है, वो बहुत, अभी तो सब अच्छे से बैठ रहे हैं, पहले भी मतलब लास्ट 2 ईयर्स से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट उससे पहले 80 मार्क्स का लिख के तो आते थे, पर उनको 60 या मैक्सिमम 60 नहीं, अगर उनको लगता है उनको फुल मिलेगा तो बट दे गेट 73 72 पे अटक जाते थे या उससे भी कम। इट्स रीजन क्या उनको लगा है वो खाली करके आए तो इसके लिए खाली 2 मार्क थोड़ी देंगे, देयर हैज टू बी सम स्टेप रिटन, इट्स नॉट द फॉर्मेट मैंने ही लिखा है, तुम्हें थोड़ा बहुत स्टेप दिखाओ, क्या कन्वर्जन दिखा रहे हो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, समथिंग और द अदर फॉर अ 2 मार्क सम, 3 मार्क के लिए अकॉर्डिंगली स्टेप, नॉट ओवर स्टेप्स भी मैं बोल रही हूँ, बट सिर्फ आंसर के लिए मार्क्स 1 मार्क ही मिलेगा ना। 4th आई एम स्किपिंग स्टेट, अच्छा मैं हर एक का टाइप करवा रही हूँ जो टेक्स्ट बुक में, स्टेट अ क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, सेकंड वाला कर रही हूँ, cos थीटा लेस देन 0 tan थीटा ग्रेटर देन 0, कौन सा क्वाड्रेंट है? यस, थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। अब इवैल्यूएट करो, अगेन ये बहुत सिंपल सम है, वील डू ओनली वन सम एंड देन वी विल मूव ऑन, इसलिए मैं फास्ट जा रही हूँ। sin 30 इंटू, बट एटलीस्ट एक सम करूँ तो तुम्हें आइडिया आएगा कि टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में इतने सिंपल सम है, यू डोंट हैव टू, यू हैव टू प्रैक्टिस जस्ट राइटिंग पार्ट, जो तुम अभी कर लोगे तो घर पे तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर डूइंग राइट नाउ एज आई एम सेइंग, इफ यू आर सॉल्विंग दिस, तुम्हें पता चल जाएगा कितने स्टेप्स लिखने हैं, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करके मुझे आंसर बता दो। यस करेक्ट, आंसर डेफिनेटली 0 है, 10 360 देख के वो पता है, बट प्लीज यहाँ पे अगर वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 0 मत लिखो, इसकी वैल्यूज डालो खाली, सो दैट टीचर, इसके भी मार्क्स होते हैं कि तुम वैल्यूज डाल रहे हो, सबकी वैल्यूज तुम्हें पता है, और फिर 0। नेक्स्ट इज 6th वाला करते हैं, एक लास्ट सम हो पाएगा आई गेस, या देखते हैं, 9 मिनट्स है, यू डोंट हैव टू रीजॉइन क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट मैं इसलिए लेट ज्वाइन करती हूँ कि तुम्हारा वो 38 मिनट्स का लेक्चर हो जाता है एंड वी डोंट हैव टू रीजॉइन। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, trigonometric functions of angle in standard position. Those who have textbook can read also. I have written the sum number. इसलिए textbook हमेशा साथ में रखो. Whose terminal arm passes through point 3, -4. So this can be asked as a 3-mark sum. Again, this is simple. Terminal arm ये है, तो that means x coordinate 3 है और y क्या दिया हुआ है -4. So first thing what you have to find is your r, unit circle से. जब ये xy है, you should have your r. What it gives you?
5. Then find all the trigonometric ratios. So write the formula. Sin theta is y upon r. Cos theta is x upon r. Get the value of sin and cos. And then you can find. So this will be minus 4 upon 5. No need to find the angle. बच्चे ये ड्रॉ करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं और फिर फाइंड करते हैं. वो भी ठीक है, वो भी मेथड, बट उतना जरूरत नहीं है. एक्स वाई से डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही है, तो डोंट वेस्ट टाइम. 3/5 लिखो और फटाफट हो जाएगा. देन फाइंड योर tan थीटा एंड ऑल दैट. ओके, you don't need to find any angle or anything. So when such a sum is asked, most of the student find the angle, फिर वो बताते हैं. इसमें तो पर वो जरूरत नहीं है कुछ भी. You can just XY दिया है तुम्हें 4 और 5, 3/5 और ऐसे ही सारे लिखने हैं. ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं ड्रॉ करना है. इफ यू वांट फॉर योर रेफरेंस यू कैन ड्रॉ, बट वो ट्राइंगल ड्रॉ करने के कुछ मार्क्स नहीं है. ये स्टेप्स लिखोगे, ये लिखना है, ये और ये फॉर्मूला. और फिर tan थीटा क्या है, एज इफ दिस इज 3, तो तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे हैं, तो सब वैल्यू के हाफ हाफ मार्क काउंट करो, तो इसलिए थोड़े ही स्टेप्स दिखाने, बस इतने ही स्टेप्स, और सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. सो वंस यू गेट साइन एंड कॉस थीटा, you will get tan theta, sec theta, cosec theta and all the remaining. So एक और सम हो जाएगा. I hope this is clear. Shall I move to the next? Okay. So up to the mark. I want you all to learn how to write. जो पूछा है accordingly you have to do. 7 देखो, if cos theta is equal to 12/13. हाँ, ऐसे sums 3 mark के लिए पूछते हैं. Theta lies between 0 and pi/2, that is first quadrant. Find the value of sin square theta. टेक्स्ट बुक ऐसे डिजाइन है, वो हर बच्चे के लिए, ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए, इसलिए तुम्हें थोड़ा इजी इसलिए लगेगा. बेसिक ये सब तुम लोग आईआईटी में करते हो, बट उनके लिए एकदम बेस और नया रहता है, जो ओनली प्योर साइंस करता है, सिर्फ लेटर ऑन सीईटी और ये सब देना रहता है. तो दैट इज द रीजन टेक्स्ट बुक में तुम यू विल फाइंड ये सारे ऐसे बेसिक सम्स अंडरस्टैंडिंग वाले. सो इफ cos थीटा इज 12/13, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो ये 2 सम है, कॉमा करके है, तो 2 सेपरेट सम. टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एंड देन वी विल एंड द क्लास. उतने टाइम में अभी आई थिंक हो जाएगा लेक्चर एंड. गेट द वैल्यू हियर. अब 12/13 है, देन यू कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल, यू नो, या उसका ट्रिपलेट पता है तो वो पता है. अगर कॉस है तो ये 12 और ये 13 है, तो ये 5 होगा. फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो एंड गेट द वैल्यू. डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन वैल्यू ही. ये जब भी ऐसा कुछ हो ना, डोंट राइट, मतलब टेक्स्ट बुक का मैं बता रही हूँ, ऑलवेज कीप द वैल्यू इन फ्रैक्शन रेड्यूस फॉर्म. फ्रैक्शन वैल्यू ही रखो. जब भी ये रेशियोज की होती है, हमेशा उसको फ्रैक्शन में ही रखो. ये फाइनल आंसर, वी डोंट वांट डेसिमल आंसर एट ऑल. हमारे पास भी बोर्ड में जो आता है वो फ्रैक्शन आंसर्स ही आते हैं. सो टेल मी द फ्रैक्शन वैल्यू. सब्स्टिट्यूट करके गेट द वैल्यू. सकेत मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू बता. नहीं, मुझे ये नहीं आ रहा है. मुझे लगा तूने अप्रॉक्स वैल्यू डेसिमल की लिखी है, इसलिए हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू ही बोर्ड आल्सो प्रेफर्स. यस आमिर, योर वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चेक कर सके, क्योंकि वो फर्दर रेड्यूस नहीं होता है और तेरा वैल्यू अलग ही आ रहा है. ओके स्टूडेंट, सिली एरर हो सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट नो और समथिंग, बट इट हैपेंस. कभी कभी सिली एरर हो सकते हैं. साइन की वैल्यू कॉस में डाल दी, कॉस की वैल्यू साइन में डाल दी, या स्क्वायर करना भूल गया एंड ऑल दैट. यस श्रेयस, ईशान, वरुण, सबके राइट है. आई एम टेलिंग द आंसर. आंसर इसका है -119 अपॉन 120. -119 अपॉन 120 इज द आंसर. ये आंसर है. दिस इज द आंसर टू दिस. चेक इट आउट. वैल्यूज पुट बराबर की है. यस निर्वेद. सकेत प्लीज चेक दिस. इसका आंसर क्या आया वो भी बता देना. 1/10 स्क्वायर थीटा इजी है, करेक्ट. 144 अपॉन 25. वो तो यहां से भी पता चलता है, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और वो भी नीचे है ये.
रेसिप्रोकल है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा. यस डन ना. 2 मिनट्स फिर भी लेफ्ट है, हम और एक सम कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट सम. 8th वाला, यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट. तो कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता ये यूजिंग टेबल्स क्यों लिखा है. यूजिंग टेबल मतलब तुम्हारा वो स्टैंडर्ड टेबल ही, ओके, और कोई टेबल नहीं. यूजिंग टेबल ऑल्दो लिखा है, इट्स जस्ट द स्टैंडर्ड टेबल जो स्कूल में किया है. इसका वैल्यू फटाफट फाइंड करके बताओ. दिस डेफिनेटली लास्ट सम, देन वी कैन गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक और 9th वाला बाकी रह जाएगा, वो हम एक सम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, या करवा देती हूँ, रुको. 9th का, सो दैट सीधा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. दिस ऑल यू आर फाइंडिंग इजी. इफ sec a is equal to minus 25 by 7 and a lies in second quadrant. This all are 3 mark sum, yeah, 2 mark sum. You have to find all other trigonometric functions. Find other trigo functions. If we know don't complete, you complete after class immediately. Complete कर लेना. Yes, Varun, इसका आंसर राइट है. निर्वेद, सकेत, yes, yes, yes. आंसर इज 2. अब ये वाला देखो, सेके दिया है और क्वाड्रेंट दिया है. तुम इसको कॉसे करके भी कर सकते हो, फिर ट्राइंगल ड्रॉ करो, क्वाड्रेंट के हिसाब से सारी वैल्यूज फाइंड कर दो. तो तुम कॉसे क्या हो जाएगा, -7/25. और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो तुम्हें भाई या तो पाइथागोरस से करो या रिजल्ट आइडेंटिटी यूज करके. सी टेक्स्ट बुक में आइडेंटिटी यूज करके किया है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. You can use this identity, or this is also allowed. We definitely allowed the triangle method also. तो अगर तुम्हें ट्राइंगल मेथड करना है कि ये 7 है और ये 25 है, फिर साइन कन्वेंशन अच्छे से देख लो और फिर ये फाइंड करना है वन एंड द सेम, और यूज दिस आइडेंटिटी एंड फाइंड साइन थीटा. एंड सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन विल बी पॉजिटिव, कोसेक विल बी पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल विल बी नेगेटिव. वरुण क्या 7 है? हाँ 7 है, ये 7 है, -25/7. और जब भी अगर मैथ्स टेक्स्ट बुक खरीद ली है, सबसे पहले प्लीज खरीदो, बाय मैथ्स टेक्स्ट बुक. Lecture will end, you don't have to rejoin. A lecture is over, you don't have to rejoin, and this exercise is also over. Please open the textbook. Whenever I'm reading, I will always write the question number. So if sometimes it is blur or internet issue,